Hare
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare.
Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Gajananam Bhutaganaधिसेवितां Kapittajando Bhalacharuhatam Umasutam Shokalina Sakarakam Namami Vighneswarapadam Parvanya Roso Bhakaslavava Pechami Tvam Dharma Samudacheta Yasyanischitam rohitam Shishasteyam sadimam tvam prapannam Kavim Puranamanusasidara Manoraniyam Samanusmaretya Sarvasya Bhagaramachintarupa Madityavarnam Tamasapparastat Pashyami devastvavadevadehe sarvastatahutabhisesasambha Brahmanamisham Kamalasyanastha Nishistya sarva Nuridasyastika Anekabahu Dharabhaktanetra Pashyami Tvam Sarvatunantarupam Mantam Brahmadhyam Napunastavade Pashyami Deshe
स्वरूपा केचिनं गरिणं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलाकद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताक्षवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं द्यावापृथिव्यो चिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिन्मे प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलानि रुद्रादित्या वसवो ये साध्या विश्वेश्विनो मरुतः सोष्मराश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मितास्यैव सर्वे सानिऋषिकेशतवप्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि हिता प्रीतिहो द्रवन्ति सर्वे नमस्यान्ति च सिद्धसङ्घा तस्मात् स तेन नमेरन्मात्मा गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपत्रे सजगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं त्वमादिदेव पुरुषपुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् भित्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं ईशमनन्तरूपा वायुर्यमोऽग्ने वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं
प्रपितामहस्य नमो नमस्ते सहस्रते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वदेव सर्व अनन्तवीर्या निकविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्तोषिततोऽसि सखेति मत्वा रसनं यदुक्तं हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन यच्चावहासार्थमशक्तिदोषि विहारशय्या सर्वभोजनेषु एकोऽथवाप्यस्युतसमक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीया न त्वस्तमोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वा महमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि देव सोऽहम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। राम। श्री गीता जी का पाठ 8वां अध्याय श्लोक संख्या 21 से अध्याय समाप्ति पर्यंत। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तमाहो परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल
षण्मास उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रे तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतो शाश्वते मते एकयात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः नैते स्थिति पार्थ जानान् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अतीति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति साध्यम् वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अतीति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति साध्यम् योगी परं स्थानमुपैति साध्यम् ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं
कि ये बातें हमारे मतलब समझ में भी आई हुई है कि तो जैसी निष्ठा होनी चाहिए वैसी नहीं होती, सीखी हुई सी लगती। इसी चिंता मत करो, अपने ये समझ में नहीं आई बात है ना, अपनी समझ की चिंता मत करो। प्रश्न ये हुआ कि तीन बात है, एक योग है, एक बोध है, एक प्रेम है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो एक योग है, मानो परमात्मा के साथ हमारा जो संबंध है ना, इसका नाम योग है। गीता का मुख्य योग क्या है कि परमात्मा के साथ हमारा संबंध। तो ये नित्य योग है। तो और बोध क्या है कि अपने स्वरूप को ठीक तरह से जानना, वो स्वरूप भी अपना है। और प्रेम क्या है कि एक परमात्मा में ही खिंचाव होना, परमात्मा ही प्रिय लगे, बस एक ही, ये है प्रेम। तो ये तीनों है, उनको हम लोग कहते हैं कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। योगाश्रयो मया प्रोक्ता नृणाश्रयो विधिश्रया। तो कर्मयोग और ज्ञान योग। कर्मयोग का अर्थ क्या हुआ कि ये कर्म है ना, जितना सब संसार का है, संसार के लिए, अपने लिए नहीं है। कोई कर्म हो, चाहे वो स्थूल शरीर का हो, चाहे सूक्ष्म शरीर का हो, चाहे कारण शरीर का हो, ये प्रकृति का यह विभाग ही अलग है। और हम जो है वो जानने वाले केवल हैं। कर्मों के साथ हमारा संबंध हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं। तो ये हुआ योग। और अब बोध क्या है कि इनसे अलग निर्लिप्त का बोध कि हमारा इनके साथ संबंध पहले नहीं था, अब नहीं है, आगे भी नहीं होगा, संबंध होना संभव नहीं है। ऐसा अपने आप को जो ज्ञान हो जाना, इसका नाम है बोध। और बोध के बाद में केवल अपने स्वरूप में ही तल्लीन हो जाना, मानो जिसका अंश उस परमात्मा की तरफ ही खुद का स्वयं का आकर्षण हो जाए, इसका नाम है प्रेम। तो प्रश्न यह है कि तीनों बातें समझ में आती है ठीक, और इसमें संदेह भी नहीं। अड़चन क्या है? अड़चन निष्ठा नहीं है। निष्ठा नाम क्या है? स्थिति। स्थिति क्या कि परमात्मा का हमारा योग हुआ नहीं, हमारा उनका नित्य योग है। और संसार का योग हुआ नहीं, इसका नित्य ही वियोग है, ये सदा ही वियोग है, क्योंकि हमारा वियोग होता रहता है ना। इस एक बात को मैं बहुत बार कहता हूँ, कहा है, फिर भी कह रहा हूँ कि शरीर का संसार का संबंध तो घनिष्ठ है। आपका शरीर का संबंध कभी हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। शरीर और संसार तो हरदम बदल रहा है, और आप बदलते हो ही नहीं। एक सार बात है ये। मेरे एक मन में ही है बहुत बार कि अपना जो सत्संग सुनने वाले हैं, अगर वे ध्यान दे तो ये बात उनकी सीधी सादी बात है कि शरीर संसार के साथ संबंध पहले नहीं था, और अब भी नहीं है, और आगे भी नहीं रहेगा। इसमें सुगम इतनी है कि पहले नहीं था, पीछे नहीं थे, दो बात। ये बहुत सुगम बात है। जन्म से पहले शरीर के साथ संबंध नहीं था, मरने के बाद शरीर के साथ संबंध नहीं रहेगा। ये तो बड़ी सूल बात है। अब भी संबंध नहीं है, तो अब संबंध क्या है कि केवल ये तो बह रहा है,
शरीर और संसार तो नाश की तरफ जा रहा है और ये अविनाशी स्वयं कभी नष्ट हुआ नहीं, नष्ट होगा नहीं, नष्ट हो सकता नहीं, संभव नहीं। ये है जो का त्यों है। तो अभी जो हम जी रहे हैं ये बात गलत है। मानो शरीर मर रहा है, हरदम मर रहा है और अपने कभी नहीं मरते हैं, ये बात है। अगर स्वयं मर जाए तो आफत ही मिट जाए, किसी का पुनर्जन्म हो, कहाँ दुख पाना पड़े, कहाँ सुख पाना पड़े, किसी कर्म का फल भोगना पड़े। आप ही अगर मर जाए मर जाए, आप तो रहता है नित्य, ये है मरने वाला। तो इसके साथ हमारा संबंध नहीं है कर्मों के साथ में। कर्मों का संबंध केवल संसार के साथ है। संसार का ही अंश स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है और इनके द्वारा जितनी क्रिया होती है वो संसार के लिए होती है। ये योग हो गया और अपने अलग है, इनसे बिल्कुल अनुभव हो जाए। जैसे थंभार में एक नहीं है, ऐसे शरीर है, मन बुद्धि इंद्रियां है, इनके साथ हमारा संबंध नहीं है। ऐसा बोध हो जाए अपने को, इसको कहते हैं ज्ञान, बोध, मुक्ति। और फिर प्रेम केवल परमात्मा में ही हो, उसी सिवाय कोई अच्छी चीज लगे ही नहीं, स्वाभाविक ही, इसका नाम प्रेम है। तो ये तीनों बात होने पर निष्ठा नहीं है। तो निष्ठा नहीं में मतलब क्या है? एक सिद्धांत की बात बताओ आपको, ये है प्रश्न। अब एक सिद्धांत की बात बताओ कि परमात्मा के साथ संबंध हमारा नित्य है और शरीर के साथ संबंध हमारा है ही नहीं। ये एक बात खास जानने की है, जिसमें मैं बहुत साफ कहता हूँ कि अपने को बालक मानते थे, तो बालक के साथ में हमारा संबंध नहीं था बाल्यावस्था के साथ। अगर संबंध होता तो रहता, क्यों आप तो हो और बाल्यावस्था नहीं है, तो बालकपन के साथ हमारा संबंध नहीं। ऐसे जवानी हमारा है, वो हमारा संबंध नहीं। अगर संबंध होता हम वो रहती। वृद्धावस्था के साथ संबंध नहीं है और शरीर भी छूट जाता है तो इसके साथ संबंध भी नहीं है। जिसके साथ निरंतर संबंध छूट रहा है, इसके साथ संबंध हमारा नहीं है। अब नहीं का अनुभव कैसे हो कि इनका संबंध केवल संसार के साथ है, तो करे तो केवल संसार के लिए ही करे, अपने लिए न करे। अपने लिए करना कुछ है ही नहीं, केवल संसार के लिए करना है। जिसमें मैं कहता हूँ बहुत आश्चर्य आता है आदमियों को कि काम तो संसार के लिए ही करना है, पर चिंतन, भजन, स्मरण, जप, ध्यान ये भी हमारे लिए नहीं है, मात्र दुनिया के लिए, सबके कल्याण के लिए। और इससे अगाड़ी मैं कहता हूँ कि समाधि लगाना है, एक तत्व में स्थित होना, ये भी हमारे लिए नहीं। ये एक बात नई मिलेगी आपको, नई दिखेगी। बात ऐसी है ही ऐसी, क्योंकि कारण शरीर में समाधि होती है, चिंतन सूक्ष्म शरीर से होता है, क्रिया स्थूल शरीर से होती है, और शरीर से ही सब एक है। स्थूल शरीरों के साथ स्थूल का संबंध है, सूक्ष्म शरीरों के साथ सूक्ष्म का संबंध है, कारण शरीरों के साथ कारण शरीर का संबंध है। तो कारण शरीर का संबंध है तो उसको हमारे लिए कैसे होगा? वो प्रकृति का है, सब प्रकृति के लिए, हमारे लिए है ही नहीं। तो हमारे लिए नहीं है, संसार के लिए है, ये कर्म योग हो गया। और हमारा संबंध नहीं है, ये ज्ञान हो गया। और हमारा संबंध भगवान के साथ है, ये बोध हो गया, प्रेम हो गया। मानो संसार तो इधर रह गया, परमात्मा उधर रह गया और ये बीच में रह गया। तो संसार का संबंध उसका है नहीं और परमात्मा संबंध इसका नित्य है। और संसार का संबंध छूट जाए तो परमात्मा का संबंध जागृत हो जाए, आपसे आप ही। तो परमात्मा का संबंध हमारा है। अब कहते निष्ठा नहीं है। इसमें एक बात ही हमारे विशेष समझ में आती है, आपकी ये है कि ऐसी हम निष्ठा करेंगे, स्थित होगी। बात वास्तव में ऐसी नहीं है, संसार के साथ संबंध है नहीं।
केवल माना हुआ है, शरीर के साथ संबंध केवल माना हुआ है नहीं, था नहीं, रहेगा नहीं, और अब भी प्रत्येक क्षण मिट रहा है। ये कितनी दामी बात है, कितनी सच्ची बात है। जितने वर्ष आ गए हैं उतना हमारा इस शरीर के साथ संबंध छूट गया है। 100 वर्ष जीने वाला हर 50 वर्ष आ गया तो 50 वर्ष तो छूट गया ना। अब 50 वर्ष बाकी है, वो संबंध भी नहीं है, परंतु उतने वर्ष जिएंगे ऐसा है, परंतु वो तो छूट तो रहा है ना। कोई क्षण ऐसा नहीं, जागृत का, स्वप्न का, सुषुप्ति का, ध्यान का, समाधि का, कि जिस क्षण में शरीर का आपका वियोग न होता हो। आप कृपा से ध्यान दो, बड़ी सीधी सरल बात है कि शरीर में जितनी उम्र आ गई उतने तो मर गए ना, उतना तो संबंध छूट गया ना। एक आदमी 30 वर्ष धनवान रहा और 20 वर्ष हो गए धनवान को, अब 10 वर्ष धनवान और रहेगा, 10 वर्ष के बाद धन चला जाएगा, तो धनवान पड़े का धन का संबंध तो छूट रहा है। 29 हुआ तो 1 वर्ष रहा, 30 हुआ पूरा, आज संबंध छूट गया, कभी निर्धन हो गया। तेरे साथ धन का संबंध था ही नहीं, हुआ ही नहीं, मान लिया, अब मैं निर्धन हो गया। तू तो है जो कहते हो है, धन का संबंध है, ऐसा रहेगा, फिर साथ संबंध कैसे रहा? मुंह मुझमा कहते हैं मेरे साथ छूट गया। ऐसे माँ बाप का संबंध है, स्त्री पुत्र आदि का संबंध है, भाई बंधु कुटुंबियों का संबंध है, ये संबंध तो छूट रहा है। इसमें कोई संदेह हो तो आप पूछो कि ये संबंध छूटता है कि नहीं, संदेह पूछो। मेरे एक बात आज समझ में आई, वो एक बताऊं आपको बात। एक किसी संस्था का कोई एक अधिकारी, तो वो संस्था में गड़बड़ी करता था, तो विचार आ गया ये गड़बड़ी करता है, ये छोड़ दे तो अच्छा है, और छूट सकता नहीं, छोड़ सकते नहीं, छोड़ने वालों की दस्ती नहीं, उसकी भी दस्ती नहीं। तो महाराज एक ऐसी परिस्थिति आई, वो स्वयं छोड़कर चला गया। ऐसी घटना घटी, हुआ था वो नाम नहीं बताता हूँ, पर ऐसी घटना घटी। तो वैसे मेरी एक समझ में आई बात, वो अगर आप भी ध्यान दे समझो तो उदाहरण से समझ में आई मेरी बात, पर एक बात समझ में आई। अब वो बात सुनो, क्या उस संस्था के साथ उतना दिन रहने का योग था, तो वो उसकी उम्र थी, वो उम्र खत्म होने पर अलग हो गया। ये बात समझ में आई, वो उम्र है तो मर गया, संस्था के साथ संबंध तो छूट गया, मर गया नहीं। तो ये चीज अगर मर जाएगा तो आप साथ मरेगा, ये तो मरेगा ही क्या, तो मर गए। इस तरह से मरण संबंध छूट रहा है, मर रहा है। किसी अधिकार पर कोई है तो छूट रहा है। देखो ध्यान देकर आप देखो, सीधी सरल बात है कि मैं आकर यहाँ बैठा और आपको सुनाने लगा, तो उसमें 15 मिनट होने वाला है, 15-20 मिनट सुनाता हूँ। अब 20 मिनट में सुनाऊं तो अब 6 मिनट और बाकी रहा है, तो हमारे सुनाने की उम्र 6 मिनट रही है। ये आई नहीं समझे? 20 में से 14 मिनट मर गए ना। आप ध्यान देकर सुनो, खराब मत समझना। व्याख्यान शुरू हुआ, जो व्याख्यान धर्मा, अब व्याख्यान होते 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 इसकी 14 मिनट हो गए, तो 14 मिनट तो मर गया व्याख्यान। अब 6 मिनट और है, उसमें भी कहते कहते मर गया। अब 5-5.5 मिनट रहे, 5.5 होते छूट जाएगा, तो इतनी उम्र इतनी है
तो उमर मर गया, व्याख्यान मर गया। ये बात समझ में आती है कि नहीं? स्पष्ट है, उम्र है इसकी, स्पष्ट है ना। ऐसे ही जीना है, ऐसे ही संबंध है। ठीक ध्यान दो कि बिना से चातुर्मास होगा 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 होगा, फिर क्या हो रहा है, हो रहा है। अब आप समझो तो हो रहा है तो वृत्ति है, पर संबंध विच्छेद हो रहा है। इधर देखो तो आज भादवे के भी 3-4 दिन बीत गए, तो 1 महीना तो ये सत्संग मर गया, चातुर्मास मर गया। अब 1 महीने में 3-4 दिन और मर गए। अब कितने दिन बाकी रहे? पूरा भादवा है नहीं, 11 तक है। अब 11 तक है तो 11 दिन तो कितना दिन बाकी रहा, तो उम्र खत्म हो रही है ना। ये बात समझ में आती है नहीं? शंका है तो बोल दो भाई, ये तो बात समझ में आती है ना। तो बस समझ पूरा हो गया, 11 होगी, 12 होगी, बस खत्म हो गया। प्रश्न तो यही था कि बात तो समझ में आती है, पर जो नाशवान है वो नाशवान तो है, पर उसका आकर्षण नहीं मिटता है। आकर्षण नहीं मिटता है तो अपने उल्टी बात मानी हुई है कि हमारा हम जी रहे हैं, हमारा चातुर्मास हो रहा है, इस तरफ हमारी वृत्ति है, ये छूट रहा है, इधर वृत्ति नहीं है। इतना ही फर्क। ये भी तो हम बोलते हैं कि हम नाशवान ही जानते हैं। नहीं, जानते नहीं, इधर ख्याल होना चाहिए कि छूट रहा है, बीत रहा है, ये हो रहा है, जी रहे हैं, ज्ञान है, इसलिए चातुर्मास हो रहा है, इधर क्या, इधर वृत्ति है, ये छूट रहा वृत्ति नहीं है। इधर सच्ची की तरफ वृत्ति नहीं है, झूठी की तरफ वृत्ति है। केवल इतना ही करना है कि बीत रहा इतना ही देखो, आप निष्ठा हो जाएगी। शब्द बुरा लगता है पर चातुर से मर रहा है, सच्ची बात है, सच्ची है ना। तो मर रहा है, बस मरने की तरफ ध्यान हो, जीने की तरफ ध्यान नहीं होगा तुम निहाल हो जाओगे। वह में तुम जी रहे, सतमौत हो रहे, वो कह रहा बीत रहा है। नवा पाठ होगा, 9 दिन पाठ होगा। अब 9 दिन होगा, अब 9 दिन होगा क्या बताओ? आज हुआ ना, तो 1 दिन तो मर गया ना, नवा में से 1 दिन तो मर गया। अरे मर गया, ये सच्ची है बात, पर सच्ची मानने को होना है, इसको मानते हैं, सच्ची बात की तरफ ध्यान नहीं देते। 1 दिन तो मर गया, सच्ची है ना। इधर ध्यान बीत रहा है, इसी तरफ ध्यान होना चाहिए। हर समय संसार का संबंध हमारा छूट रहा है, हम जो जी रहे हैं पकड़ रहे हैं संबंध को, और सच्ची बात है विच्छेद को, विच्छेद की, संबंध विच्छेद की सच्ची बात है। तो हरदम संबंध विच्छेद हो रहा है, इधर ध्यान दो, निष्ठा हो जाएगी। जी आपसे बात सुनते हैं, ध्यान नहीं जाता हो, ऐसे तो हम इतने ध्यान तो जाता है, पर ध्यान जाने पर भी ख्याल नहीं करते, इसको जमा नहीं रखते। ध्यान जाता है पर ख्याल नहीं करते। ध्यान में ख्याल में क्या फर्क है? आप मन ध्यान, बात तो आ गई, पर इस पर कायम नहीं रहते। चातुर्मास हो रहा है, इसमें कायम है, चातुर्मास बीत रहा है, इसे कायम कहाँ रहते इस पर? सुन ली बात सच्ची है, पर इसको छोड़ दी, फिर भी खत्म हो रहा है। मर रहे हैं, सच्ची बात है, पर तो मर रहे नहीं, जी रहे। हम थोड़ी मरते हैं, अब थोड़ी मरते हैं। ये क्या हुआ, जी रहे हैं, अब भी मर रहे हैं। अभी हमारा व्याख्यान मर रहा है, तो अभी मर रहे हैं, सब अभी मर रहे हैं, अभी जी रहे हैं। ये है गुत्थिया, खास गांठ। अब जी रहे हैं, इसको पकड़ा है, मर रहे हैं, इसको पकड़ा नहीं है। अब केवल आबाद आज पकड़ रहे हैं कि अभी जी नहीं मर रहे हैं। संसार का संबंध विच्छेद हो रहा है, कुटुंब के साथ संबंध विच्छेद हो रहा है, इस बात को पकड़ लो। पर अचानक क्या तो हम मरे तो नहीं है, अभी थोड़ी मरते हैं, अभी तो जी रहे हैं। ये है कि नहीं बताओ? तो सच्ची बात जी रहे हैं, सच्ची बात मर रहे हैं, ये
तो सच्ची बात को छोड़कर झूठी बात को पकड़े हुए है, ये बाधा है। वियोग हो रहा है, हमारा संसार साथ वियोग हो रहा है। अब ये वियोग हो रहा है, एक दिन पट वियोग हो जाएगा। वियोग तो और पहले था नहीं, तो धन में घर में आसक्ति कैसे होगी? जैसे यहाँ आकर बैठने का, यहाँ रहने का अपना समय बीत रहा है, वियोग हो रहा है। सच्ची है ना? तो जिंदा ही नहीं, क्योंकि वो हो गया, समाप्त हो गया। ऐसे ही घर में रहना है, वियोग हो रहा है। वियोग की तरफ ध्यान नहीं है, संयोग की तरफ ध्यान है। योग किसका नाम है? दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। वियोग का नाम योग है। संसार साथ वियोग हो, उसका नाम योग है। अब इस एक वियोग को याद रखो, हरदम वियोग हो रहा है। दृढ़ता ये होनी चाहिए, जैसे जीने की। हम थोड़ी मरते हैं, ऐसी क्या बात? हम मरते हैं थोड़ी, अभी थोड़ी मरते हैं। जब मरेंगे मरेंगे, मगर मरेगो जो अभी मरोगे, अभी मर रहे हो। जीने में से दिन कम रहा, मरना और क्या होता है? प्रति क्षण मर रहे हैं। इसको कायम नहीं रखते, जीते हैं इसको कायम रखते, उल्टी बात को कायम रखते हैं। ये दोष है। ख्याल में आया जी? ये दोष है खास। ये वियुक्त हो रहा है। ये दोष भी इतना समझ में नहीं आता है, क्योंकि जानते हैं मरना तो है ही, और नहीं जानते नहीं, ये जानते हैं, ये नहीं जानते हैं, मानते हैं। किस आधार? एक मानना है, एक जानना, दो चीज। जानते नहीं है, ये किस आधार पर हम मानेंगे? हम जानते नहीं। बैराग नहीं हो रहा है ना, इस आधार पर जानो कि राग कैसे नहीं मिट रहा है। पदार्थों में, भोगों में राग कैसे नहीं मिट रहा है? जब जानते हैं तो। जानते नहीं, सीखी हुई बात है, सीखी हुई याद की हुई बात है, जानते नहीं है। जानते हैं यहाँ बैठने को, तो उससे वो कोई राग होता ही नहीं। ये जानते हैं, और सही सदवियोग जानते नहीं है, सुनी है, मानते हैं, सीखी हुई बात है। सीखी हुई जानने में फर्क है। ये क्या ऐसे आप पूछे जो प्रश्न करने से बात बहुत खुलेगी। ख्याल आया कि नहीं? एक सीखी हुई बात जानने की बात है, एक मानने की वैसी अनुभव हो जाए ठीक है। तो अनुभव ये है कि हमारा वियोग हो रहा है, ये बात है अनुभव की। पर अनुभव में तो जी रहे हैं हम, मर थोड़ी है। ऐसे थोड़ी मरते हैं हम मर थोड़ी, अभी थोड़ी मर रहे हैं, हम तो जी रहे हैं। ये बात बहुत झूठी है, उसको पकड़ी हुई है। ये अनजानपना है, ये अनुभव नहीं है। सुनी हुई है, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, कभी मर जाएंगे, देखा जाएगा, अभी थोड़ी मरते। ये है ना, मरेंगे कभी भविष्य में, अभी मर रहे नहीं मानते। सच्ची है, मरेंगे जो मरेंगे, आज थोड़ी मरते हैं। ये है ना जीने की, यही बात है। ये जानते नहीं है, सुनी हुई सीखी हुई बात कहते हैं। बात कहते हैं जो सच्ची है, कि झूठ कोई कर सकता नहीं इसको। इस बात सच्ची बात हमने माननी नहीं है। मानने पर वियोग का दुख नहीं होगा, ये संग्रह का सुख नहीं होगा, चोरी नहीं होगी, चालाकी नहीं होगी, भोग नहीं होगा, ये चीजें इनको संग्रह नहीं होगा, पकड़ जो मन के वो नहीं होगी। पकड़ होती है तो मर रहे हैं ये बात नहीं, जी रहे हैं ये बात है। ये यहाँ है। अब इसमें शंका करोगे तो सीखी हुई बात और है, समझी हुई बात और है। समझी हुई ठीक बुद्धि में समझ ले, पर इसका अनुभव होना और चीज है। अब बाहर किसी को कही जाए, अब सत्संग के सिवाय मैं कहूँ तू मर रहा है, तो नाराज हो जाएगा, नहीं होगा। सच्ची बात है, नाराज क्यों होता है? पर नाराज वो जी रहा हूँ, कैसे मर रहा हो गया? सांप देता है मेरे को, मैं क्यों मर रहा तू और तेरे बाप, मैं क्यों मरूं? यही करेगा। अगर सत्संग ये कहते मर रहे हैं तो
बुरे नहीं मानते, क्यों कई दिनों से पकड़ी हुई बात ही जा रहा, पर जा रहा है उसको छोड़ करके हम जी रहे हैं, ये बात भीतर से पकड़ी हुई है। तो ये जब तो पकड़ी है, जब तक इस बात को समझा नहीं है, सीखी है, सुन ली सीख ली, सुनने सीखने से काम नहीं, सीखी हुई विद्या काम नहीं देती, अनुभव काम देता है। तो अनुभव ही जैसा वियोग हो रहा है। आप विचार करो कि धन के साथ वियोग हो रहा है, ऐसा विचार करो, चोरी करेगा? करेगा क्या? ठगी करेगा? धोखा देगा किसी को ही? सागागी करेगा? झूठ कपट करेगा क्या? वो हमारे तो वियोग हो रहा है, झूठ कपट कर, झूठ कपट हमारे पीछे जमा होगा, ये नीयत बुरी हो जाएगी, भाव बुरा हो जाएगा, ऐसी चीजें तो मर रही, साथ में वियोग हो रहा है, इस वियोग के लिए भाव बुरा क्यों करूं मैं? बताओ, अनुभव उसका नाम है। ऐसे समझने वाला सोच नहीं कर सकता, ठगी नहीं कर सकता, धोखा नहीं दे सकता, लोभ रह नहीं सकता उसके भीतर, काम रह नहीं सकता, लोभ रह नहीं सकता। लोभ रहता है तो धन के साथ मेरा संबंध है, धन रहेगा, जितना धन जिएंगे उतना काम लगेंगे, मौज करेंगे, ये पकड़ी बात। तो अब बात आज एक हो गई कि हम मर रहे हैं, यह वियोग हो रहा है। आपका गीता प्रेस में रहने का संयोग था ना, वो मर गया, बहुत सारा मर रहा है, बात सच्ची है, मान लो, आप निष्ठा हो जाएगी। नारायण 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 नारायण। राम मिति भाद्रपद कृष्ण पंचमी सोमवार विक्रम संवत 2046 श्री कृष्ण संवत 5215 है। तदनुसार दिनांक 21 अगस्त 1989 को प्रातःकालीन 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर धोरे पर परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ये प्रवचन हुए। राम।